کرنے والے طلبہ کے لیے نئی مشکل آن پڑی۔ ایچ ای سی نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو 39 کروڑ کے فنڈز جاری نہ کیے۔ خصوصی گرانٹ نہ ملنے پر بلوچستان اور کے پی کے طلبہ کا مستقبل خطرے میں بڑھ گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا اسکالرشپ پر پابندی لگانے کا عندیہ دے دیا گیا۔ اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے نئی مشکل آن پڑی۔ ایچ ای سی نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو 39 کروڑ کے فنڈ جاری نہ کیے۔ خصوصی گرانٹ نہ ملنے پر بلوچستان اور کے پی کے طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا اسکالرشپ پر پابندی لگانے کا عندیہ۔ مزید بات کریں گے طیب صاحب سے۔ طیب، یہ کیوں عندیہ دیا گیا ہے؟ ایچ ای سی کی جانب سے جنوبی پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کو جو اسپیشل گرانٹ فراہم کی جا رہی تھی اسکالرشپ کے مد میں، اس کے اندر ایک بڑا کٹ لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، بے شک میاں نواز شریف یونیورسٹی ہے، جنوبی پنجاب کے اندر کام کرنے والی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر اب وہ تمام طلبہ و طالبات جو کہ بلوچستان سے، فاٹا سے، خیبر پختونخوا کے مخصوص اضلاع سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے تھے، اب ان کی تعلیم کے اوپر ایک کٹ لگ جائے گا اور ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی، کیونکہ صرف اور صرف بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو 39 کروڑ روپے سے زائد کے جو بقایا جات ہیں ایچ ای سی نے ادا کرنے ہیں، جو کہ ابھی تک ادا نہیں کیے گئے، جس کے بعد جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی طلبہ و طالبات آ رہے تھے اسکالرشپ کے اوپر، ان کے اسکالرشپ کے اوپر پابندی لگا دی جائے اور خاص طور پہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اب جو بھی طالب علم یونیورسٹی کے اندر آئے گا وہ اوپن میرٹ کے اوپر ایڈمیشن لے گا اور اوپن میرٹ میں ایڈمیشن لینے کے بعد احساس اسکالرشپ پروگرام کے اوپر اپلائی کرے گا، تو جس طالب علم کو اسکالرشپ ملے گا اس کی جو فیس ہے وہ ریفنڈ کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کسی بھی طالب علم کو کوئی اضافی فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کرے گی، جبکہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو گرانٹ دی جا رہی تھی، جس میں تمام بلوچستان کے طلبہ کو فنڈ جاری کیے جاتے، جس میں ان کو اسکالرشپ فیس دی جاتی تھی، جس میں ڈپارٹمنٹ کی فیس معاف کی جاتی تھی، ہاسٹل ڈیوز معاف کیے جاتے تھے اور ٹرانسپورٹ کی جو فیس ہے وہ معاف کی جاتی تھی، لیکن اب یونیورسٹی ان تمام فیسز کے اوپر جو پابندی لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر رہی ہے، اور اسکالرشپ ختم ہو جائیں گے تو تمام طلبہ جو یہاں پر مفت پڑھ رہے تھے۔ طیب صاحب، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اسکولوں میں قرآنی تعلیمات کے لیے الگ اساتذہ کی بھرتی۔ اساتذہ سے قبل ماسٹر ٹرینر بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عربی پر عبور رکھنے والے 596 ماسٹر ٹرینر رکھے جائیں گے۔ ایم فل اسلامیات، عربی اور شہادت العالمیہ ڈگری ہولڈر اہل قرار دیے گئے ہیں۔ آن لائن درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے اسکول میں قرآنی تعلیمات کے لیے الگ اساتذہ کی بھرتی۔ اساتذہ سے قبل ماسٹر ٹرینر بھی بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عربی پر عبور رکھنے والے 596 ماسٹر ٹرینر رکھے جائیں گے۔ ایم فل اسلامیات، عربی اور شہادت العالمیہ ڈگری ہولڈر اہل قرار ہیں۔ آن لائن درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 جنوری مقرر کر دی گئی۔ اسی پر مزید بات کریں گے اکمل سومرو سے۔ جی اکمل، بتائے گا۔ بالکل، یہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی جانب سے ان اساتذہ کی بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں بنیادی طور پر یہ ماسٹر ٹرینرز ہیں جن کو بھرتی کیا جائے گا۔ 596 ٹرینر جو ہیں ان کی یہ شرط مقرر کی گئی ہے کہ ان کے انسانیات، عربی یا شہادت العالمیہ کی ڈگری ہونی چاہیے، جبکہ ماسٹر ٹرینرز وہی بھرتی کے لیے اہل ہوں گے جو 1 سال تک کا تجربہ رکھتے ہیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا اور حدیث پڑھانے کا۔ یہ 20 جنوری کی آخری تاریخ مقرر کی ہے، اور قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے آن لائن پورٹل قائم کیا ہے اور امیدواروں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس آن لائن پورٹل پر اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد شارٹ لسٹڈ امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ یہ ماسٹر ٹرینر بنیادی طور پر اسکولوں میں جن اساتذہ نے ناظرہ قرآن پڑھانا ہے ان اساتذہ کو یہ ماسٹر ٹرینر ٹریننگ دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس 13 جنوری کو طلب کر لی گئی۔ کانفرنس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کل ہوگی۔ کرونا کیسز اور تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس 13 جنوری کو طلب کر لی گئی۔ کانفرنس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کل ہوگی۔ کووڈ کیسز اور تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ 13 جنوری کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس طلب کر لی گئی ہے۔ کانفرنس کی سربراہی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا کووڈ کیسز کا، اور ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن مہم کا بھی بغور جائزہ لیا جائے گا۔
मुल्तान निजी प्रवास से आने वाले 2 मुसाफिर कोविड का शिकार हो गए। दोनों मुसाफिरों को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। एक मुसाफिर बहावलपुर जबकि दूसरा मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान निजी प्रवास से आने वाले 2 मुसाफिर कोरोना का शिकार। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जी, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये 2 कोरोना के मरीज जो हैं जिनके अंदर डिटेक्ट हुआ है कोरोना, और इनके जो सैंपल्स हैं वो मजीद तहकीक के लिए ओमिक्रॉन जैसी वबा के हवाले से भेज दी गई हैं तजज़िये के लिए। दोनों मुसाफिर जो हैं वो निजी प्रवास से पाकिस्तान पलटते और दुबई की ये कनेक्टेड फ्लाइट थी। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ममालिक से ये दोनों मुसाफिर आए थे, जिनमें से एक का ताल्लुक बहावलपुर से है जबकि दूसरे का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इन दोनों मुसाफिरों को फौरी तौर एयरपोर्ट से ही क्वारंटाइन के लिए जो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद भी मुसाफिरों के टेस्ट लिए जा रहे हैं। जितने भी फ्लाइट के मुसाफिर थे तमाम के दोबारा से तजज़िये हो रहे हैं ताकि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि दीगर जो मुसाफिर हैं वो सेफ रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड फ्लाइट 2 घंटे की थी और 2 घंटे इस फ्लाइट में ये मुसाफिर सफर करके आए हैं। इनके तजज़िये आने के बाद मजीद पता चलेगा कि ओमिक्रॉन जैसा जो वायरस है वो इनमें है या नहीं है। जी, इस हवाले से मजीद टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना और ओमिक्रोना वेरिएंट का खतरा, सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब इन एक्शन। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के अहकाम दे दिए गए। तमाम सीईओज हेल्थ को मरासला जारी कर दिया गया। कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा, सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब इन एक्शन। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के अहकाम दे दिए। तमाम सीईओज हेल्थ को मरासला जारी कर दिया गया। बिलाल नियाजी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बिलाल, कहिएगा क्या कहा गया है इस मुरासले के अंदर? जी बिल्कुल, कोविड-19 के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बायस खतरे के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था और इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल की जानिब से अब मरासला लिखा गया है। तमाम तर जनूबी पंजाब के जो सीईओज हेल्थ हैं, उसके अलावा जो डायरेक्टर हेल्थ ऑफिसर हैं, उसके साथ साथ तमाम हस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनको मरासला लिखा गया और इस हवाले से हदायत जारी की गई हैं कि कोविड-19 के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। मरासले में ये कहा गया है कि हस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं कोविड के, उनके जो लवाकिन हैं उनके हवाले से खुसूसी इंतजाम किए जाए। उनको बूस्टर डोज या कोविड के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीन है वो लाजमी कराई जाए। उसके साथ साथ तमाम तर तालीमी इदारों का दोबारा से डाटा चेक करने की हिदायत की गई है। जितने भी तलबा और तालिबात हैं, उसके अलावा टीचर्स हैं, स्कूल में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, तमाम तरह की वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शहरी सफ़र करते हैं, उसके हवाले से हिदायत जारी की गई है कि तमाम तर शहरियों का डाटा इकट्ठा किया जाए। उस हवाले से दोबारा से कहा गया है कि शहरी मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और फिजिकल डिस्टेंस को लाजमी फॉलो करें। इस हवाले से ये हिदायत जारी की गई है और ये कहा गया है कि शहरी SOP पर अमल करें ताकि कोविड से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, ये मुरासले में कहा गया है। बिलाल, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का शहर मियां वाली, जाने कब दूर होगी शहर की सड़कों की खस्ताहाली। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज और बारिशी पानी जमा है। 85 करोड़ के जारी शुदा फंड भी सड़कों की हालत दुरुस्त नहीं कर सके। शहरियों का वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? बात की जाए अगर महंगाई की, जहां पर महंगाई ने आम शहरियों को मुतासिर किया है, वहां पर मियां वाली के जो शहरी हैं उनके लिए दीगर मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। महंगाई की वजह से मियां वाली के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अंदरूने शहर जो सड़कें बनाई जानी थी उनके ठेके नहीं लिए, क्योंकि रेट जो है पुराने हैं। 85 करोड़ रुपए के फंड तो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सड़कें टूट फूट का शिकार है, जगह जगह पे सीवरेज और बारिशी पानी जमा हो जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, 85 करोड़ रुपए के फंड मंजूर है, सूरत हाल ये है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप खुद देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का हल्का है, ये ना रोड्स है ना सीवरेज है। 85 करोड़ का फंड हमने भी सुना हुआ है कि जो कहते हैं जी क्योंकि रेट्स डाउन है, महंगाई हो गई है। अब इनको बैठ के DC साहब को सोचना चाहिए जी, हम कब तक। आप देखिए मेन सिटी है जी, यहाँ से पीछे कब्रिस्तान है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का बाप दफन है जी। हम किसको जाके कहें भाई जाज? हमें तो ये समझ नहीं आती कि हमारी देहातों में कारपेट बन रहे हैं,
शहर में हमारी ये हालत है। आप ये रोड देखें, आप ये रेलवे के साथ वाला रोड देखें, पत्नी यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो ये ठेकेदारों के साथ बैठ के बात इनको करनी चाहिए, जो भी रेट्स हैं इसको एडजस्ट करें और इस काम करें। ये फंड वापस चला जाएगा तो क्या होगा, फिर तो इसने नहीं आना ना जी। कहा जा सकता है कि शायद यही वजह है कि वजीर आजम पाकिस्तान जब मियां वाली आए तो उनके इस्तकबाल के लिए लोग इसी वजह से नहीं निकले कि सड़कें टूट फूट का शिकार है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, तो यहाँ तो कोई काम भी नहीं हो रहा ना, सड़कें जो है खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, गली मोहल्ले सब इसी तरह पड़े हैं जिस तरह के ये रोड नजर आ रहा है आपको। किसी गली में चले जाएं यही हाल होगा उसका, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो टोटल फंड की बात हो रही है 85 करोड़ की, ये सब ज़बानी कलामी है, कागजी है, हम में अमलन तो कुछ इसमें जी, जैसा कि आपने इन शहरियों की जानिब से सुना कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो मियां वाली का दौरा किया है, शायद यही वजह है कि मियां वाली सिटी के जो लोग हैं वो वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए नहीं गया है, क्योंकि मियां वाली का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां पे सड़कें टूट फूट का शिकार न हो, सीवरेज पानी जमा न हो, बारिशी पानी जमा न हो, जबकि लिंक रोड और दीगर रोड जो है वहां पर अरबों रुपए के फंड खर्च किए जा रहे हैं। अंदरूनी शहर के जो बासी हैं उनको इंतहाई दिक्कत और परेशानी का सामना है। परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, डेरा गाजी खान में गुज़श्ता दिन होने वाली बारिश शाकिर टाउन के मकीनों के लिए जहमत बन गई। ना ही गलियां पुख्ता हो सकी, ना ही कीचड़ से निजात मिल सकी। मेन गली में सूरत हाल अबतर होने के बायस इलाका मकीन परेशान है। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ है, क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? जी बिल्कुल, डीजी खान में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश शाकिर टाउन के मकीनों के लिए जहमत बन चुकी है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल शाकिर टाउन कॉलोनी की है। अबतर सूरत हाल है, कीचड़ और बारिशी पानी जमा होने के बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जो यहाँ के मकीन हैं, इस गली से गुजरना उनके लिए मुहाल हो चुका है। बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, कितना दुश्वारियाँ हो रही हैं यहाँ पर? बारिश को हुए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक सूरत हाल बेहतर नहीं हुई? अभी तक तो सूरत हाल तकरीबन, जब अभी आप मौजूद हैं तो तकरीबन पहले की निस्बत ये 100% अभी दुरुस्त हो चुकी है जो आप देख रहे हैं। तो जब बारिश हुई है तो तकरीबन लोग यहाँ पर घरों में महदूद हो जाते हैं। कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, या कोई मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो सब घरों में पड़े रह जाते हैं जब तक ये सुखा नहीं आता। गवर्नमेंट की ये मतलब नाअहली है या यहाँ के जो मौजूदा MPA है या MNA है तो काम तो नहीं करते हैं। ये कारकर्दगी तो आपके सामने है। इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, झूठे वादे करने के लिए आ जाते हैं। खुद मोटरसाइकिल पे उधर से आ रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है? गलियां भी पुख्ता नहीं हुई यहाँ? आप देख रहे हैं इस टाइम जो हालात हैं गलियों के, ये वजू करके आदमी नहीं आ सकता मस्जिद तक, नमाज पढ़ने के लिए बंदे नहीं आ सकते। बहुत हालात ख़राब हैं गलियों के। मेहरबानी करें, अफसरान बाला से कहें कि मेहरबानी करें। गुजरते हैं, कितना दुश्वारी होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है मेरे बच्चे, हम तो नमाज के लिए बहुत बड़े परेशान हैं। पैदल आदमी भी नहीं चल सकता, आपके सामने ये हालात बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये जहाँ तक निगाह जा सकती है कीचड़ ही कीचड़ पानी नज़र आता है। अबतर सूरत हाल है, ना ही गलियाँ पुख्ता हो सकी हैं और ना ही यहाँ पर कोई इंतजामात बेहतर हो सके हैं। अहले इलाका खासे परेशान हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया नोटिस ले और सफाई के बेहतर इंतजामात के खसूस तौर के ऊपर गलियों को पुख्ता करें, सफाई के बेहतर इंतजाम किए जाएं। बहुत शुक्रिया आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम खान हनफिया कॉलोनी में सिविल सिस्टम नाकारा है, गली जोहड़ में तब्दील तो कैसे होगा गुजारा, इलाका मकीन छतरात से मसाइल का शिकार। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताएगा। रहीम खान, शहर के थाना सदर के सामने जो है मसरूफ हनफिया कॉलोनी की मेन ये गली है जो इस वक्त सीवरेज के पानी में डूब चुकी है और इसके बाद इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अंकल जी बताएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना और इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दामात किए गए हैं? मैं इधर बच्चे पढ़ाता हूँ, यह हाफिज़ कुर्बान मेरा नाम है। हनफिया कॉलोनी में 3 बजे बच्चे आते हैं, रोज़ाना पढ़ाता हूँ। कोई नागा नहीं होता मेरा। तकरीबन 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं, फ्री पढ़ाता हूँ, सिपारे बेफ्री देता हूँ और साथ ही पानी खड़ा है। बच्चों का तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि कुरान पढ़ाता हूँ, मतलब सामने मस्जिद तो है, बच्चे उधर जाते नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। यही हमारा मसला है बड़ा। इनका मसला है कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं सड़क के किनारे बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, मगर जब वो पानी उनके कपड़ों पर गिरता है तो फिर जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप बताएगा इंतजामिया जो है यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही? इंतजाम कई बार हमने कहा है, लेकिन वो आते हैं देख के चले जाते हैं। और ये मेन गली आप देख रहे हैं सामने, सब्जी वाला गुजर रहा है, इस भी पानी से गुजर रहा है, और ये औरतें भी आपने देखा वो भी गुजर रही हैं पानी से। और ये मेन गलियाँ इंतजाम का कई बार हमने कहा,
लेकिन आगे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, इंतजामिया को 12 मरतबा आगाह किया गया, दरखास्तें दी गई, मगर कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये परेशान है। इनका यही मुतालबा इंतजामिया से कि फौरी तौर पे यहाँ पे सीवरेज के जो मसाइल हैं इंतजामिया उनको मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लिया के वार्ड नंबर 15 उस्मान गनी चौक में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा, इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मैं मौजूद हूँ लिया के गुंजानाबाद मोहल्ला फैजाबाद के वार्ड नंबर 15 के अंदर। जहाँ पर अगर बात की तो यहाँ पर उस्मान गनी चौक के अंदर इस वक्त जो सीवरेज का पानी है वो इस वक्त जहाँ पर तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जहाँ पर कई फुट जो पानी जमा होने की वजह से जो यहाँ पर गुजरने वाले अफराद हैं, यहाँ से जो मर्द ख़वातीन हैं, बच्चे, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर सरापा एहतजाज है, इन मुजाहिरीन से बात भी करते हैं। भाई बताइएगा क्या मुश्किलात हो रही हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पानी हर वक्त खड़ा रहता है, बारिश ना भी है फिर भी खड़ा रहता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज के लिए मसला बनता है। ये कोई भी जिसके पास भी जाते हैं सियासी के पास वो भेजते हैं कमेटी वालों को। कमेटी वाले कहते हैं ये सीवरेज बिल्कुल नाक़िस हो चुकी है, ना सीवरेज और डलवाएं। और फिर रफाकत साहब के पास गए थे, उधर आए थे, फिर देख के गली फिर भी नहीं बनी। जी बिल्कुल जी, इस यहाँ पर न जहाँ तो सीवरेज बने जा रहे, ना यहाँ पर टफ टाइल जो है लगाई जा रही है, शहरी परेशान है। भैया तुम दसो कितनी परेशान थी पानी खड़ा जी? बहुत परेशानी है पे सर। हर पीर रफाकत साहब को कई दफा गए थे सर, पीर उनके को मतलब कि नियाज साहब को भी गए थे गली वास्ते, ना इधर गए थे, ना इधर पानी का मसला है पे सारा। सर जरा बंदा गुजरता उनके कपड़े पलीत होंगे, ना नमाज पढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल बच्चे औरतें सारे जलीलो ख्वार हैं सारी मोहल्ले सर। बिल्कुल कोई भी इतना बंदा काम करना नहीं आता सर। वोट गिनल सारे आते हैं, खासा मुश्किलात का सामना है। जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कीमतों में रोज बरोज इजाफे से शहरी परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे बशीर काज़मी से। जी बशीर बताएगा, बढ़ती महंगाई पर शहरियों का क्या कहना है? रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से मुतवसत तबका भी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। मसाइल में इजाफा हो रहा है जिससे गुजर बसर करना सफ़ेद पोश अफराद के लिए मुश्किल हो गया। मैं इस वक्त कबीरवाला में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। बताइएगा महंगाई की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ा है आपको और आप क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो पहले मसाइल पर बात करेंगे। हम नौकरियों की बात करें तो खान साहब ने नौकरी की बात की थी, नौकरियां देने की बात नहीं की थी। 3.5 साल हो गए हैं बेरोज़गार। हमारे पास जो पहले नौकरियां थी वो भी छीन रही हैं, और ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। बहुत से मुश्किलात का सामना है। जिस तरह हम तो खान साहब से रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारा तो बेड़ा घर को वो होता है, मतलब कि चीज़ों के प्राइस जो है बढ़े हुए होते हैं। इस वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमारी तो हुकूमत से ने खुदा से अपील है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और इन चीज़ों के मतलब कि रेट जो है ना कम किए जाए और महंगाई को कम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, हुकूमत से खासे मायूस नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि रात को सोते हैं तो महंगाई को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गाड़ियों के इंस्पेक्शन फीस पर 10% इजाफे की तैयारी कर ली गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन पर 10% रकम का इजाफा होगा। गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस पर 10% इजाफे की तैयारी कर ली गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन पर 10% रकम का इजाफा होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। मुल्तान में PP 213 की आवाम के मसाइल अब हल होंगे। हेड सेकेंडरी नहर से टैंक चौक तक नई सड़क की तामीर का आगाज कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान का सूबाई हल्का PP 213 में जो तरक्याती काम है बाकायदा तौर पे शुरू किए गए हैं, जिसमें एक अहम जो सड़क है सिकंदरी नहर से मिला के हेड सिकंदरी नहर को जो एयरपोर्ट की तरफ मिलाएगी। यकीनी तौर पर इससे जनूबी पंजाब के अवाम को फ़ायदा होगा। जो दूर दराज से लोग आते थे, जिसमें लिया, कोटअदू, दीगर अजला से उनको परेशानी होती थी, सूरज मियानी रोड से वो एयरपोर्ट तक पहुँचते थे। अब जो है एक शॉर्टकट, एक बड़ा रोड जो है तकरीबन 3.5 किलोमीटर इस तवील सड़क को तमीर किया जा रहा है। जल्द ही इसकी तमीर मुकम्मल की जाएगी। काम शुरू हो चुका है। अवाम जो है, लोग हैं, इस तरक्याती काम से खुश नजर आ रहे हैं। हम लोगों के ज़बानी जानेंगे इनका क्या कहना है। तकरीबन पिछले 5 साल से अरसलान टाउन से रोड शुरू हुआ है, लेकिन पीछे ही आके रुक गया था। ये बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई साहब की खसूसी काविशों से
3 किलोमीटर का यानी कि ये रोड का टुकड़ा है जो अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जिस पे काम भी अब शुरू हो चुका है। अच्छा, ये कारपेट जो रोड है इसकी वजह से सूरजमैनी रोड पे बहुत ज़्यादा बर्डन कम हो जाएगा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, कितने और तरक्याती काम जो है यहाँ पे शुरू कराए जा रहे हैं? वसीम खान बादजोई की सदारत में 6 से 7 करोड़ की लागत से मेट्रो रोड का काम जारी है, जिसके अंदर ये वाला रोड शामिल है, प्लस यूबीएल चौक से लेके पुलवासिल तक के मेट्रो रोड का काम जारी है, टिन्नी वाला में मेट्रो रोड का काम जारी है, चाह जुम्मे वाला में मेट्रो रोड का काम जारी है। इसके अलावा तारीख में ये पहली बार हुआ है कि सूरज मियानी में 7 करोड़ की टफ टाइल का काम जो है ना वो जारी है। एक अहम सड़क जो है इस वक्त हेड सिकंदरी नहर से ज़ेर तामीर है, इससे यकीनी तौर पर लाखों की आबादी को फायदा होगा, अवाम लाखों की आबादी को फायदा होगा। अमजद मलिक आपका शुक्रिया। मुल्तान में मज़ारात की तज़ीन व आराइश का मिशन दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर तामीराती काम शुरू है। महकमा औक़ाफ़ और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने 70 लाख रुपए जारी कर दी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। महकमा औक़ाफ़ और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के मज़ारात की बहाली के मुआहदे के तहत मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में 70 लाख रुपए के फ़ंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। जैसा कि आप पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पर फ़र्श का जो है वो लेवल किया जाएगा, 4 दीवारी बनाई जाएगी और मज़ीद यहाँ पर क्या काम किया जाएगा, यहाँ ठेकेदार हमारे साथ हैं, बताएंगे कितने अरसे का ठेका है और क्या क्या काम। इंशाल्लाह हमारा काम जो है ये फर्श बनाना है और दीवार बनानी है और इसका गुटका लगाना है और अंदर का काम है और ड्रेन बनानी है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तामीराती मटेरियल जो है वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और लेबर भी काम कर रही है। आर्कियोलॉजिकल वर्क जो है मज़ार के अंदर वो भी किया जाएगा, गुंबद की तज़ीन व आराइश भी की जाएगी और दीगर जो भी यहाँ पर तज़ीन व आराइश का काम है वो तज़ीन व आराइश भी की जाएगी। सुहेरा तारिक आपका शुक्रिया। चिश्तियाँ डीएसपी अरशद लतीफ़ का लाहौर तबादला। डीएसपी अरशद लतीफ़ डॉल्फिन स्क्वाड सिटी लाहौर तैनात कर दिए गए। डीएसपी रिजवान खान लाहौर से चिश्तियाँ तैनात। रिजवान खान डीएसपी लाहौर स्क्वाड सिटी डॉल्फिन थे। चिश्तिया में डीएसपी अरशद लतीफ़ का लाहौर तबादला कर दिया गया है। डीएसपी अरशद लतीफ़ डॉल्फिन स्क्वाड सिटी लाहौर तैनात हुए हैं। डीएसपी रिजवान खान लाहौर से चिश्तियाँ तैनात हुए हैं, जबकि रिजवान खान डीएसपी लाहौर स्क्वाड सिटी डॉल्फिन तैनात थे। हाई कोर्ट मुल्तान बार के सालाना इंतखाबात 26 फरवरी को होंगे। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ने वकला को वाजबात क्लियर करने के हवाले से 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा माहिर इमरान से। जी माहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट मुल्तान बार के वकला के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है हाई कोर्ट के एग्जीक्यूटिव बॉडी की जानिब से, बार ओहदेदारान की जानिब से। तो उस हवाले से जो हाई कोर्ट के आइंदा माह होने वाले जो इंतखाबात हैं उस हवाले से वकला को जो रजिस्ट्रेशन एक फ़ीस होती है वो जमा करवानी जो है लाजमी करार दी गई है। जो वकील जमा नहीं करवाएंगे उस हवाले से भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, इस हवाले से भी हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मलिक सिजाद हैदर मितला साहब मौजूद हैं। इलेक्शन साल 2022-2023 26 फरवरी 2022 को होने जा रहे हैं। इसके लिए ड्यूज की क्लियरेंस की डेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव के मुतफिका फैसले के मुताबिक 20 जनवरी 2022 रखी गई है। 20 जनवरी 2022 तक जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान अपने ड्यूज क्लियर करा लेंगे वो हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में एलिजिबल वोटर होंगे। 20 जनवरी तक जिन दोस्तों ने अपनी क्लियरेंस न करवाई वो एलिजिबल वोटर नहीं होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। 26 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अगर इन वकला ने जिनकी हाई कोर्ट का लाइसेंस है लेकिन वो उनकी मेंबरशिप एक फ़ीस जो होती है वो जिन्होंने अपनी क्लियरेंस वाजबात ना करवाए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे और उनका जो कीमती वोट है वो ज़ाया हो जाएगा। 20 जो जनवरी है वो लास्ट डेट दी गई है बार ओहदेदारान की जानिब से। 20 जनवरी तक फौरी तौर पर वाजबात क्लियर कराएं, नहीं तो आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है महर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया की खाद की स्मगलिंग रोकने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर का रात गए ज़िले हुकाम के हमरा नाकों के इंस्पेक्शन। आमिर करीम खान ने महकमा ज़राअत के नाकों की चेकिंग की। नाकों पर गैर हाजिर महकमा ज़राअत के 2 अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। गैर हाजिर फील्ड असिस्टेंट आबिद अली और एग्रीकल्चर ऑफिसर अल्लाह दित्ता मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की बस्ती मलोक नाका पर तैनात अहलकार को शाबाश दी गई। किसानों के लिए खाद की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे।
महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के डायरेक्टर जनरल मुदस्सिर रियाज मलिक का बहावलपुर का दौरा। मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं पंजाब भर में डिवीजनल सतह पर पनाहगाहें कायम कर रहे हैं। बहावलपुर सिविल अस्पताल में डिवीजन भर के मुसाफिरों और मरीजों के लवाहिकीन के लिए पनाहगाह कायम कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जनरल हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के मुदस्सिर रियाज मलिक साहब विजिट में हैं बहावलपुर के। एक शानदार मंसूबा, लोगों को रिहाइश मिलेगी पनाहगाह की सूरत में आप लोग दे रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में, जिसमें न सिर्फ मरीज उनके लवाहिकीन बल्कि शहर के भी कुछ लोग अगर कुछ ठहरना चाहें तो ठहर सकेंगे। तो क्या कहेंगे इस तरह मंसूबे का? देखें, ये जो मंसूबा है पनाहगाह का, ये पूरे सूबे के अंदर चल रहा है। हर डिवीजन हेडक्वार्टर में एक पनाहगाह बनने जा रही है। इस वक्त 103 पनाहगाहें जो हैं वो पूरे मौजूद हैं, जो सोशल वेलफेयर 14 पनाहगाहों को चला रहा है। पिछले तकरीबन 1.5 से 2 सालों के अंदर 9 लाख के करीब लोग इसके अंदर रहे हैं, ठहरे हैं, और तकरीबन 40 लाख मील्स हमने सर्व किए हैं। एक बहुत बड़ा वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का मंसूबा है। सो ये पनाहगाह जो यहाँ बहावलपुर में बनने जा रही है, अस्पताल के एतबार से यहाँ पर लोग जो दूर दराज से आते हैं ताकि उनको फैसिलिटी मिल सके रहने की, यहाँ पर अपने जो मिलने आते हैं लोग। सो ये तकरीबन 4 करोड़ रुपए का मंसूबा है। इंशाल्लाह फरवरी में उम्मीद है कम्प्लीट हो जाएगा, हम इसे फाल कर देंगे। सो ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी भी साथ होनी है। पनाहगाह अथॉरिटी बन चुकी है। अथॉरिटी के तहत अब एक बोर्ड बनना है डिवीजन हेडक्वार्टर के ऊपर, जिसको प्राइवेट लोग ही चलाएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट ही चलाएंगे। सो ये मिल के उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा मंसूबा है। इस तरह और मंसूबे भी आज हम यहाँ विजिट कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों के लिए एक अच्छी रिहाइशगाह तामीर की जा रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसे लीड ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, डेरा गाजी खान कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। नाकिस कारकर्दगी के अफसरान से मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कर लिया गया। किसी मजिस्ट्रेट को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। किसानों की रिलीफ के लिए अफसरान काम करें। खाद की गैर कानूनी तरसील और जखीरा को रोका जाएगा। जमाबंदी और डिजिटल गिरदावरी की जल्द यकीन दहानी की जाएगी। एहसास राशन प्रोग्राम में दुकानों की रजिस्ट्रेशन का टारगेट पूरा किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। म्युनिसिपल इदारों के सरबराहान के हमरा सफाई का जायजा लिया। शहरियों ने अपने मसाइल से मुतालिक आगाह किया। सब्जी मंडी में फल और सब्जियों की नीलामी का भी जायजा लिया गया। रहीम खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नौ मुंतखब काबीना और ग्रुप लीडर ने वकला का चैम्बर में जाकर शुक्रिया अदा किया। नौ मुंतखब सदर कहते हैं इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइए। एक बार रहीम खान के इलेक्शन मुकम्मल हुए हैं, उसके बाद जो मुंतखब काबीना है उनकी तरफ से तमाम डिस्ट्रिक्ट बार के जितने भी वकला के चैम्बर्स है वहां पर जाकर शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जिसकी क़यादत जो मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं वो खुद कर रहे हैं। ढोल की थाप पर वकला भंगड़े डाले जा रहे हैं। शाहजहां साहब, पहले तो हमारी तरफ से आपको मुबारक हो। आप एक रवायत रही है बार की तरफ से, जब भी कोई कैबिनेट मुंतखब होती है तो हर जगह जाकर शुक्रिया अदा किया जाता है। कुछ लोग आपके मुखालिफ भी थे, कुछ लोगों ने आपके हक में वोट दिया। तो आप सबके सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, काबीना है, तो किस तरह से अज़म का इज़हार करते हैं, किस तरह से वकला के जो डिस्ट्रिक्ट बार की खिदमत है वो की जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी जो ये रवायत शुक्रिया अदा करने की है, हम तमाम बार का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज किया। जिन्होंने हमें वोट दे के मुंतखब किया उनके भी, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चालू रखते हुए उन्होंने इसमें हिस्सा लिया भरपूर। और हम आज के बाद जो है पूरी बार के ये काबीना जो है, पूरी बार की काबीना, ये किसी ग्रुप की नहीं है, किसी फर्द वाहिद की नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो पूरी बार की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, किसी एक फर्द या ग्रुप के लिए नहीं। बिल्कुल एक फर्द के ग्रुप के लिए काम नहीं है और यही अज़म का इजहार किया जा रहा है। जो इलेक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंटर बैंक में डॉलर सस्ता हो गया। एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 174 रुपए का हो गया। आपको बताते हैं इस हवाले से कि इंटर बैंक में डॉलर सस्ता हो गया। एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर 176 रुपए का हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स का ऐसा बताना है इंटर बैंक में डॉलर सस्ता हो गया है। एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता हुआ है।
डीडी खान में पुलडाट की तज़ीन और आइश और रीडिजाइनिंग के 40 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला। मोनूमेंट का तामीरी मंसूबा महीनों ताखीर का शिकार रहने के बाद 20 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। के मरकजी चौराहे पुलडाट की तज़ीन और आइश के लिए जो 39 करोड़ रुपए का मंसूबा है, उसके पहले मरहले में जो मोनूमेंट की तामीर है 1 करोड़ और 70 लाख रुपए की लागत का जो तखमीना तैयार किया गया था, और उस हवाले से अब ये मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है। इसके हवाले से 20 जनवरी इसकी तकमील के लिए जो है वो डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है कि 20 जनवरी को हर सूरत ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो है वो चांद तारा मंगवा लिया गया है। 218 किलोग्राम का जो चांद तारा है वो इस मोनूमेंट के ऊपर लगाया जाएगा। इस वक्त से हमारे साथ मौजूद है PHC करकल। हाँ जी, क्या सूरत है, कब तक ये मुकम्मल करके दे रही है? ये हमारा जो है ना टाइल वर्क, फिनिशिंग वर्क जो है ना हमारा स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ये जो है ना 20 जनवरी तक जो है ना हम कंप्लीट कर देंगे। चांद तारा हमारा आ गया है। इंशाल्लाह जो है ना हमारी जो है ना जो ऊपर लास्ट में जो हमारी स्लैब थी वो आज इंशाल्लाह उसकी पोरिंग हो जाएगी, और हम 2-3 दिन बाद जो है ना इसका चांद सितारा भी हम इंस्टॉल कर देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो है वो टाइल वर्क के लिए भी जो है वो बेस बनाई जा रही है। 1 करोड़ और 70 लाख रुपए की लागत से ये मोनूमेंट जो है मुसलसल ये मंसूबा ताखीर का शिकार होता जा रहा था, और अब जो है वो 20 जनवरी इसकी जो है वो 20 डेडलाइन जनवरी इसकी तारीख है आखिरी। बहुत शुक्रिया रजा मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद स्पोर्ट्स ग्राउंड बंद होने से क्रिकेट खेलने वाले बच्चे परेशान हैं। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ ज़िला में बच्चों के स्कूल जो हैं वो बंद है, इसी वजह से बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं। मुजफ्फरगढ़ के ये जो कमसिन बच्चे हैं ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि वो बास्केटबॉल कोर्ट में ही क्रिकेट खेल रहे हैं, चूँकि क्रिकेट के यहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो ग्राउंड है वो दस्तयाब नहीं है, और मुजफ्फरगढ़ का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो भी बंद है। इस वजह से फैसल स्टेडियम में जो बच्चे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनसे इस हवाले से जानते हैं। ये बताएगा कि मज़ा आ रहा है यहाँ पर खेलने में? नहीं, हमें यहाँ खेलने के लिए हमें जगह चाहिए, क्योंकि हम बास्केटबॉल ग्राउंड में यहाँ खेल रहे हैं। हम क्रिकेट कहाँ खेलें, जो वहाँ पे खेलते हैं तो क्या है, उन्होंने ग्राउंड बंद किया हुआ है, तो हमें सहूलियात चाहिए। हम क्रिकेट खेलें, कहाँ खेलें? अच्छा, ये बताइएगा छुट्टियाँ कितनी रह गई हैं? और छुट्टियाँ यही 2-3 रह गई हैं हमारी। अच्छा, क्या सहूलियात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं? यहाँ पे किस तरह की सहूलियात चाहते हैं? हमें यहाँ क्रिकेट ग्राउंड खोलते ही देना चाहिए कि हम वहाँ जाके खेलें, सब फ्रेंड्स हैं, देखिए आप सारे करें, एंजॉय करें। हम वहाँ जाके हम एंजॉय भी नहीं कर सकते। यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड में खेलते हैं, फिर बास्केटबॉल प्लेयर्स आके कहते हैं कि यहाँ पे आप ग्राउंड तोड़ते हैं ऐसे ईंटों से। यहाँ पर जो क्रिकेट खेलने वाले छोटे बच्चे हैं वो खासी परेशानी का शिकार हैं, चूँकि स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो बंद है खेलों की सरगर्मियों के लिए। इस वजह से बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलने पर मजबूर है, और यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं। बच्चे ग्राउंड का मुतालबा कर रहे हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने का आज़म। RHC पर OPD की दूसरी शिफ्ट जारी है। 20 रोज में 11,000 से ज्यादा मरीजों को सहूलियात फराहम की गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के हकूक के लिए मुतहरिक हो गई। किसानों के लिए बिलावल भुट्टो ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। मुजफ्फरगढ़ से MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद भी कमेटी में शामिल हैं। नवीद कमर, नवीद जीवा और सैयद हसन मुर्तजा की नवाबजादा इफ्तिखार से मुलाकात हुई। किसान मार्च 21 जनवरी को होगा। पीपल्स पार्टी किसानों के हक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कमिश्नर मुल्तान ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को खुद मॉनिटर करने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद सब्जी मंडी पहुंच गए। कमिश्नर ने सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा भी लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जी, महंगाई के हवाले से इंतज़ामिया जो है वो खुद ऑन ग्राउंड है। इस वक्त कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद मंडी का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर कीमतों का तयन कर रहे हैं। हमारे साथ कमिश्नर साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आने का मकसद ये था कि एक तो जो अवेलेबिलिटी है या सप्लाई है उसको मॉनिटर किया जा सके, जिसमें ख़ास तौर पर जो हैं टमाटो हैं और आलू हैं और प्याज हैं और बाकी जो भी अशिया उनको भी हवाले से तो, और जो ऑक्शन का जो प्रोसेस है उसको देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी अभी आज जो ऑक्शन हुई है इसकी टमाटर की वो मैंने चेक किया, तकरीबन 18 रुपये पर किलो रेट जो है वो यहाँ पे है। इसी तरह जो प्याज है वो 21 से 22 रुपये पर किलो है।
तो चीज़ों का जो है अभी क्योंकि सप्लाई जो है वो बेहतर है, जो प्याज है वो यहाँ पे लोकल भी आ रहा है, जो आलू की काश भी लोकल हो रही है सर, आलू की जो अभी जो फसल है वो लोकल आ रही है, उस वजह से तीनों चीज़ों का जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है और सफिशिएंट क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं। और आम तक कितने में बिकेगी अगर मंडी में ये कीमत है तो क्या ज़हन में आप सोचते हैं? आप खुद भी तो बायर होंगे ना, खरीदते होंगे चीज़ें। नहीं, उसमें यही है कि जो एक रीजनेबल मार्जिन जो रख के वो दिया जाता है और वो जो है 20% से लेस होना चाहिए, तो वो जितनी भी ऑक्शन की यहाँ पे प्राइस होती है उसमें 20% से लेस का मार्जिन रख के दिया जाता है, तो उसके ऊपर रिटेल के ऊपर सेल होती है। ठीक है जी, कमिश्नर मुल्तान जो है खुद आके तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं। उम्मीद है कि इसके बाद शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान के काश्तकार अब मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहेंगे। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में महकमा मौसमियात के ताउन से मौसमी हाल बताने वाला स्टेशन कायम कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताइए। काश्तकारों के लिए एक बड़ी खबर है, वो ये है कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और महकमा मौसमियात के ताउन से एक जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो वेदर स्टेशन बना दिया गया। तफसीलात जानते हैं, डॉक्टर सीसीआर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके बारे में बताइए, काश्तकारों कैसे ये पैगाम पहुँचाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ फसलों पर ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं, तो उसी के लिए ये वेदर स्टेशन नस्ब किया गया है और ये ऑटोमेटिक है और हर लम्हे यानी कि हर मिनट की रीडिंग्स दे रहा है कि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर कितनी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक डेप्थ में जितनी मॉइस्चर होगी वो हमें डेटा देगा और जितनी हवा में मॉइस्चर है वो देगा, विंड की स्पीड बताएगा और जो इसमें डायरेक्शन विंड की वो भी आ जाएगी। तो जो वेपोरेशन रेट है पर डे वो बताया जाएगा कि हर दिन में सुबह से शाम तक कितनी यानी कि पानी बुखारात में तब्दील हुआ है। इससे हमारे काश्तकारों को ये फ़ायदा होगा कि उनको पानी लगाने के जो वक्फा है उसमें बेहतर मैनेजमेंट करने का मौका मिलेगा। और दूसरा ये जितना दिन सनलाइट यानी सूरज जितनी देर चमका है वो भी हमारे पास डेटा आएगा कि इतने घंटे सूरज आज रोशन रहा है, और क्योंकि जितने भी ज़ाई तालीफ के अमल हैं पौधों में वो सूरज की रोशनी पर मुनहसर होते हैं, तो ये हमें डे लेंथ का भी बताएगा। इसी तरह जितनी भी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं हर मिनट के हिसाब से बताएगा और काश्तकार अगर बेहतर मैनेजमेंट करें इसके लिहाज से तो हमारी जो अखराजात हैं उनमें कमी आएगी और जो मुनाफा है पैदावार बढ़ेगी। जी, पैदावार बढ़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि अब हमारे काश्तकार जो है उनको बाकायदा तो पता चल सकेगा कि आया कि अब काश्तकारों को मालूम पड़ सकेगा कि अब मौसम कैसा होने वाला है। अली, आपका शुक्रिया। खाने वाले मौसम के खवातीन और बच्चों में गर्म कपड़े और बिस्तर तकसीम करने की तकरीब हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा तकरीब का अहवाल। सरमा में जदीद ग्रुप और फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से गरीब खवातीन और बच्चों में गर्म कपड़े और बिस्तर तकसीम करने का सिलसिला जो है वो जारी है और म्यूनसिपल कमेटी में इस हवाले से जो है कैंप लगाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन जो है इस हवाले से की जा रही है। तो मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद साहब, इनसे जानेंगे। जी नवीद साहब, ये फलाही काम है और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मुगल साहब, ऐसे है कि जदीद ग्रुप ऑफ कंपनी खानेवाल और जान मोहम्मद जवेद ट्रस्ट के वीएन को हम आगे लेके चल रहे हैं। हमारा वीएन ही यही है कि बेसहारा लोगों की मदद की जाए, चाहे किसी भी सूरत में। अब मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत की वजह से हमने गरीब लोग जिनके पास ख़रीदने की इस्तात नहीं है उनके लिए गर्म कपड़े और रज़ाइयों का हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है और हमारी कोशिश है कि जो मुस्तहिकीन हैं उनको ये इमदाद हम उनको डिलीवर कर सकें ताकि वो मौसम सरमा में इनको अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकें। ये सर्दी से महफूज रख सकें। फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर सैयद हमाद शाह साहब बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, गरीब लोगों में गर्म कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, तो इस मौके पर क्या पैगाम देंगे? जी, हमें जो अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है उसमें यकीनन मुस्तहिक अफराद का हिस्सा भी होता है और जब भी ज़िला गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ खाने वाले कोई इनिशिएटिव लिया है, चाहे वो कोविड के सिलसिले में हो या अभी इस वक्त सर्दी की सूरत हाल के हवाले से हो, तो फ्लोर मिल एसोसिएशन ने उसमें अपने पूरा हिस्सा डाला है और हम समझते हैं कि जो मुस्तहिक अफराद हैं वो हमारे माशरे का हिस्सा है और हमें बढ़ चढ़ना चाहिए। जी ताहिर साहब, आप बताइएगा कि अच्छी एक्टिविटी हो रही है तो इस हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया का ये एक इंतहाई अहसन कदम है। यकीनन मौसम की शिद्दत है और उन्हें कपड़ों की ज़रूरत है लोगों को, और ज़रूरतमंद लोगों की जितनी मदद हो सके मैं कहता हूँ सोसाइटी के तमाम तबकात को इस मैदान में आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, मुखय्यर हज़रात और सोसाइटी के तबकात अगर सामने आएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं पिछड़े हुए तबकात के हल हो सकते हैं। और शुक्रिया, आप हमें अपडेट कराए।